everyone, welcome to my channel Core Grammar and English Education. So today in this video we are going to study figure of speech. Okay, so in English literature, while doing stories and poems, we often hear about a term figure of speech. Okay, तो what is figure of speech? पहले हम लोगों को figure of speech क्या है, let us see a definition. Okay, so this definition may vary, हर जगह में इसका definition अलग होता है, but meaning almost same है. A figure of speech is a phrase or word having different meanings than its literal meanings. Okay, figure of speech is actually what? Is a phrase. Okay, is a phrase or a group of words, okay, having different meaning than its literal meaning. अब इसका मतलब क्या मैं बताऊंगा. Having a different meaning than its literal meaning. ओके, इसका मतलब अगर इजी वर्ड्स में समझा जाए, जो तुम्हारा लिटरली लिखा हुआ है, मतलब फ्रेज में जो लिखा हुआ है, उसको छोड़ के भी उसका कुछ एक सिंबॉलिक मीनिंग है. ओके, फिगर ऑफ स्पीच मतलब क्या है? वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग हम लोगों को बताएगा, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा मीनिंग तुम्हारा लिटरल मीनिंग से अलग रहेगा. वो एक फ्रेज भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही फ्रेज बोलते हैं, वॉट एवर यू में से, लेकिन इसका लिखा हुआ मीनिंग से मीनिंग थोड़ा दूसरा रहेगा, ठीक है. जैसा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, until and unless you see one example you won't be able to follow. देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. The sun rose from its bed. तो देखो ये चीज़ को अगर हम लोग नॉर्मली इंग्लिश में समझते हैं कि सन अपना बिस्तर से उठा. अब देखो क्या ये इसका रियल मीनिंग है, सन अपना बिस्तर से उठा? क्योंकि सन अपना बिस्तर से कैसे उठ सकता है? तो इसका एक डिफरेंट एक मीनिंग है. लिटरल मीनिंग क्या है? सन एक बिस्तर से उठा. बट इसका फिगर ऑफ स्पीच से हम लोग अगर इसका मीनिंग सोचने का कोशिश करेंगे तो ये एक्चुअली में सनराइज को समझा रहा है. ओके, तो हर एक फिगर ऑफ स्पीच ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हम लोगों को बताता है, ठीक है. एक्स्ट्रा कुछ मीनिंग, सॉरी एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं, एक्स्ट्रा कुछ मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है उसको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग्स फिगर ऑफ स्पीच हम लोगों को बताता है. ओके, अब देखो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच का बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है, बहुत सारे हैं. ऑलमोस्ट 10-15 टाइप्स आर देयर. ओके, सो इट विल नॉट बी एबल टू means I will not be able to explain all the types in one single video, so I have shortlisted few figure of speech like simile, metaphor, personification, hyperbola, oxymoron, alliteration, irony and onomatopoeia. Okay, so 8 figure of speech, 8 commonly used and most you can say essential figure of speech I will explain in this particular video. Okay, so let us see a few examples of figure of speech which I am going to explain you in this particular video. As I told you earlier, let us see on the whiteboard. So see, the most commonly used and we are often asked about it is your simile. Okay, simile. I will explain each and every your figure of speech in detail. First see the types. First is your simile. Second we have metaphor. Third we have personification.
Fourth we have hyperbola or hyperbole, whatever you say. Fifth you have oxymoron. Sixth is your alliteration. Seventh that we are going to study today is your irony. And eighth is your onomatopoeia. Okay. So these are the 8 kinds of figure of speech that we are going to study today. So let us start with the definition and meaning of simile. Okay, we will also see one example for each case. So let us start with simile. What is a simile? Let us know first. तो टोटल 8 टाइप्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. एक एक टाइप को मैं धीरे धीरे हर एक एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहा हूँ. वीडियो को पूरे एंड तक देखना सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी वन ऑफ द मीन्स एनी फिगर ऑफ स्पीच दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो. तो फर्स्ट है तुम्हारा क्या? फर्स्ट है सिमिली. ओके, सिमिली का मतलब क्या है? इट इज़ अ कंपैरिजन. ओके, इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स between two unlike objects. Okay, unlike objects using like or as. देखो ध्यान से सुनो, ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. जैसा सोचो मैं कोई एक सेंटेंस लिखता हूँ. एग्जाम्पल, शी इज लाइक अ रेड रोज. तो देखो एक लड़की का ब्यूटी को रेड रोज के साथ कंपेयर किया गया है. ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ हमेशा ज़रूरी है सिमिली में, दैट इज़ द यूज़ ऑफ ईदर लाइक और एज. ठीक है, तो मैंने लाइक से एक एग्जाम्पल बताया, शी इज़ लाइक अ रेड रोज. ओके, एज से कैसा हो सकता है? एज से तुम बता सकते हो कि the marble is as white as snow. Okay, देखो मैं as से एक सेंटेंस बताता हूँ. The marble is as white as snow. So see, whenever we use figure of speech in our sentences, the sentence becomes expressive. कोई भी तुम चीज़ लिखोगे, चाहे वो essays हो या कोई भी आर्टिकल हो. ओके, एंड इफ यू यूज योर फिगर ऑफ स्पीच, ओके, एनी ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, देन यू कैन गिव गुड एक्सप्रेशन टू योर राइटिंग. फॉलोड. तो मैंने फर्स्ट जो समझाया वो है सिमिली. सिमिली है एक फिगर ऑफ स्पीच, बहुत कॉमनली यूज्ड होता है. सिमिली का मतलब क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लाइक और एज. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर तुमको अनलाइक टर्म समझ नहीं आ रहा है या याद नहीं रह रहा है तो सिंपली याद रख सकते हो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब कंपैरिजन होगा, देखो दो ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक शी है, एक रेड रोज है, ये दोनों के बीच में एक कंपैरिजन किया गया है, दोनों को कंपेयर किया गया लाइक वर्ड के साथ. मार्बल को यहाँ कंपेयर किया गया स्नो के साथ और उसमें हम लोग यूज़ किए हैं एज. तो अगर हम लोग को पूछता है कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, देन वी विल से द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज simile. Okay, I hope you have understood what is a simile. Now let us see metaphor. Okay, अब ये metaphor क्या है हम लोग देख लेते हैं.
सी मेटाफोर में क्या है? मेटाफोर भी कंपैरिजन है, लेकिन उसका थोड़ा डिफरेंट है। देखो, मेटाफोर भी है कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स without using like और as। तो देखो, मेटाफोर में भी कंपैरिजन होगा, लेकिन कंपेयर करने के टाइम में हम लोग like या as का यूज नहीं करेंगे। जैसा एक एग्जांपल देखो, camel is the ship of the desert। Camel is the ship of the desert। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर तुमको डिफरेंस अभी समझ में आ जाएगा। जैसे सिमिली में, इन केस ऑफ सिमिली वी यूज टू यूज लाइक और एज। ओके, इधर हम लोग लाइक यूज करते थे या एज यूज करते थे, दो चीज में कंपैरिजन लाने के लिए। यहाँ देखो, दो चीज क्या क्या है, दो डिफरेंट चीज, एक है कैमल और एक है शिप। तो कैमल को हम लोगों ने शिप के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है, कि कैमल डेजर्ट का शिप है, लेकिन हम लोगों ने कोई लाइक या एज नहीं यूज किया। तो अगर हम लोगों को पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, देन द आंसर विल बी योर मेटाफोर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ मेटाफोर। तो मेटाफोर क्या है? इसमें विदाउट लाइक एंड एज कंपैरिजन होगा बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब चलो हम लोग देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बहुत इजी है, हम लोग बहुत जगह इसका वर्ड का नाम सुने हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है क्या? लेट अस सी। ये बहुत यूज़ में आता है पर्सोनिफिकेशन। तुम अपना राइटिंग का क्वालिटी को, राइटिंग का जो पैटर्न है, उसमें एक्सप्रेशन है, उसको तुम बहुत बेटर बना सकते हो इफ़ यू यूज़ दिस काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन हाँ, उससे मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है, कुछ भी उल्टा पुल्टा देने से नहीं होगा। तो सी पर्सोनिफिकेशन, तो in this particular figure of speech it gives human like characteristics to non-living objects, टू नॉन लिविंग और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ओके, मतलब ह्यूमन जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तुम देते हो, ठीक है, ह्यूमन जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तुम कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को देते हो, देन इट बिकम्स योर पर्सोनिफिकेशन। मैं एग्जांपल बताऊंगा, इजी है, समझ में आ जाएगा। ओके, ह्यूमन लाइक अगर तुम कैरेक्टर देते हो कोई नॉन लिविंग थिंग्स को, देन इट इज योर पर्सोनिफिकेशन। तो ह्यूमन लाइक कैरेक्टर मतलब क्या है? जैसा मैंने तुम लोगों को फर्स्ट में ही एक एग्जाम्पल दिया था, चलो वो एग्जाम्पल को अभी छोड़ते हैं, वो तो हम लोगों ने देख लिया है। द फ्लावर्स डांस्ड विद द विंड। देखो, अब फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स, हाँ, प्लांट्स के टर्म में बोलोगे तो वो लिविंग है, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर ऐसे नॉर्मली देखते हैं तो फ्लावर्स तुम्हारा कोई ह्यूमन नहीं है, ठीक है। तो फ्लावर्स का जो वर्ड डांसिंग हम लोग लगाए हैं, डांसिंग वर्ड एक्चुअली में कोई भी ह्यूमन के साथ जाता है, ठीक है, वो कोई भी तुम्हारा, जब हम लोग उसको कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ लगा ले, ओके, ट्रीज, फ्लावर्स, ठीक है, ये सब के साथ, देन दिस पर्टिकुलर यूज ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज योर पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। मतलब हम लोग फ्लावर्स को ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स देने का कोशिश किए हैं और बोल रहे हैं कि फ्लावर्स का जो मूवमेंट है वो कैसा है, वो ह्यूमन का डांस जैसा है। मैंने और एक सेंटेंस भी बताया था फर्स्ट में, अभी वो वाला मैं फिर से बता देता हूँ। द सन रोज फ्रॉम इट्स बेड
तो ये भी जो है द सन रोज फ्रॉम इट्स बेड, यहाँ पर जो रोज टर्म है, रोज मतलब नींद से उठना, ठीक है, तो नींद से उठना और बेड के साथ रिलेट करके हम लोग बोल रहे हैं, तो ये भी एक ह्यूमन बीइंग ही करता है। जब हम लोग उसको सन के साथ रिलेट कर रहे हैं, सो वी आर पर्सोनिफाइंग सन ओवर हियर, ओके। तो हम लोग यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रहे हैं वो पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ भी जब फ्लावर्स को हम लोग डांस के साथ रिलेट कर रहे हैं, देन ऑल्सो वी आर यूजिंग पर्सोनिफिकेशन, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का पर्सोनिफिकेशन। तो हम लोगों ने 3 चीज़ अभी तक देखा है। वन इज योर सिमिली, सेकेंड इज योर मेटाफोर, थर्ड वी हैव सीन इज योर पर्सोनिफिकेशन, ओके। नाउ लेट अस सी व्हाट इज हाइपरबोला, ओके। Okay, so now let us see our fourth figure of speech, that is your hyperbole. Okay, अब hyperbole का मतलब क्या है? Hyperbole means your extreme exaggeration. Okay, extreme exaggeration. अब ये extreme exaggeration का मतलब क्या है? किसी के भी बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना जो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सोचो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सोचो किसी ने एक कुछ मर्डर कर दिया है, ठीक है, और उसमें उसके हाथों में खून है और वो उसको लेके इतना ज़्यादा टेंस्ड है कि वो ऐसा बोला कि द होल सी कैनॉट वॉश द स्टेन ऑफ ब्लड फ्रॉम माई हैंड, ओके। देखो, मैं खुद बना के बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली रिलेटेड है मैकबेथ के साथ। मैकबेथ अगर किसी ने पढ़ा है, जो शेक्सपियर का लिखा हुआ है, तो जनरली बड़े बड़े ऑथर्स, पोएट्स ये सब फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, ओके। तो देखो, मैं एग्जैक्ट लाइन तो नहीं याद नहीं है मुझे, बट आई एम सेइंग हाउ एग्जैजरेशन वर्क्स, ओके। सो सी, द होल सी कैनॉट wash the stain of blood from my hand. इसका एक एग्जैक्ट लाइन है, ओके। इफ यू रीड द प्ले देन यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट, ओके। नाउ फॉर द टाइम बिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपरबोल, ओके। तो यही सेंटेंस से तुमको समझ में आ जाएगा हाइपरबोल का मतलब क्या है। तुम खुद सोचो, पूरा समुंदर से फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हाथ धो पाएगा? पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पूरा समुंदर से अगर मैं हाथ भी धो लूँ तो हाथ से ब्लड का स्टेन नहीं जाएगा। तो ये क्या है? एक्सट्रीम लेवल में बड़ा चढ़ा के कुछ एक्सप्रेशन देना। तो दिस एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, एक्सट्रीम बड़ा चढ़ा के कोई चीज़ को बोलना जो होता है, दैट इज नोन एज योर हाइपरबोल, ओके। तो हाइपरबोल एक्चुअली में एक टाइप ऑफ एग्जैजरेशन है, लेकिन वो एग्जैजरेशन का लेवल 2 बोल सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेशन है, ओके। नाउ लेट अस सी ऑक्सीमोरोन, ओके। अब ये ऑक्सीमोरोन क्या है? लेट अस सी। ऑक्सीमोरोन का मतलब है टू ऑपोजिट आइडियाज आर जॉइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट। यहां पर 2 ऑपोजिट आइडियाज रहेगा, 2 ऑपोजिट आइडियाज टू गिव अ स्पेशल इफेक्ट। देखो, मैं बताता हूं, ये वर्ड तुम लोगों ने बहुत जगह सुना है, बिटर स्वीट, बिटर एंड स्वीट। अगर सोचो, बिटर एंड स्वीट बोलते हैं या बिटर स्वीट बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो, बिटर मतलब क्या है? कड़वा। और स्वीट मतलब क्या है? मीठा। तो तुमको अगर कोई पूछता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, तुम बोलते हो बिटर स्वीट, ठीक है। मतलब यहाँ पर 2 ऑपोजिट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे हम लोग कुछ एक नया इफेक्ट लाने का कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा भी था, मैंने उसमें मज़ा भी था, और उसका कड़वाहट भी जो था उससे भी
हम लोग को कुछ ज़्यादा बुरा नहीं लगा। तो इट वॉज अ, जैसा बोलते हैं ना, स्वीट एंड सॉल्टी एक्सपीरियंस, ठीक है, मीठा और नमकीन। जैसा मीठा और नमकीन दोनों अलग ऑपोजिट है, लेकिन दोनों एक साथ जब हम लोग खाते हैं या यूज़ करते हैं तो उसमें एक अलग न्यू इफेक्ट आता है। ओके, वैसा बिटर एंड स्वीट, उसके बाद स्वीट एंड सॉल्टी, ये सब चीज़ें होते हैं तुम्हारा ऑक्सीमोरोन। ओके, ये सब टर्म्स को भी हम लोग अपने जो राइटिंग होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट इज योर एलिटरेशन। ओके, तो चलो एलिटरेशन क्या है देख लेते हैं। एलिटरेशन भी बहुत इजी है, वो हम लोग बहुत पोएम्स पढ़े हैं या पढ़ेंगे जिसमें एलिटरेशन का यूज़ हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो एलिटरेशन क्या है देखते हैं। एलिटरेशन, सो व्हाट इज एलिटरेशन? एलिटरेशन का मतलब ये है कि तुम दो या उससे ज़्यादा नेबरिंग वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड से यूज़ करोगे। ओके, सी व्हाट इज एलिटरेशन? सीरीज ऑफ वर्ड्स, सीरीज ऑफ वर्ड्स बोलने से यूजुअली 2 और 3 रहते हैं, ठीक है। हैविंग, और इसमें और एक पॉइंट याद रखना होगा, सीरीज ऑफ वर्ड्स दिस शुड बी नेबरिंग वर्ड्स। ओके, मैं बताऊंगा एग्जाम्पल में, तब समझ में आएगा और क्लियरली। नेबरिंग वर्ड्स, तो सीरीज ऑफ वर्ड्स विच शुड बी नेबरिंग वर्ड्स हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। इसका मतलब क्या है? मैं एक पोएम का लाइन लिखता हूँ, ठीक है, उसमें पोएट बोलता है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। ये वेस्ट विंड एक पोएम है, ठीक है, उसका लाइन है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। ध्यान से सुनो, मैं एलिटरेशन कैसे समझा रहा हूँ या उसको तुमको कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोग को क्या बोला है? सीरीज ऑफ 2 और 3 नेबरिंग वर्ड्स हैविंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखो यहाँ पर वाइल्ड W, वेस्ट W, विंड W। तो देखो नेबरिंग जो ग्रुप 3 वर्ड है, वाइल्ड है, वेस्ट है, विंड है, ये तीनों में W W W सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ को बोला जाता है एलिटरेशन, और ये एक टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, तो चलो एक बार समराइज कर लेते हैं। एलिटरेशन का मतलब क्या है? एलिटरेशन इज अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, यूजुअली 2 or 3 वर्ड्स, those should be your neighboring words and the first consonant sound of each word should be same, W W W, wild west wind। तो ये सब चीज़ एक्चुअली में पोएम में रिदम मेंटेन करने के लिए, पोएम में जो एक ताल बोलो, छंद बल, যাই বল, ওরকম একটা জিনিস মেনটেন করার জন্য, পোয়েমের মধ্যে একটা স্পেশাল এফেক্ট আনার জন্য usually we use alliteration. Okay, poets use. Okay, and if you also get that skill of writing, develop that skill of writing, you can also use these things with your own words, with your own creativity. Okay, now what we have after alliteration? We have irony. Okay, now see, sometimes we have difficulty in finding out this irony. So what is an irony? Let us see. Irony बहुत कॉमन है, बहुत यूज़फुल भी है, हम लोग बहुत जगह यूज़ भी करते हैं। डेली बोलते वक्त, बात करते वक्त हम लोग कभी कभी आयरनी बोल देते हैं, बट हम लोग को पता नहीं चलता है। ओके, तो आज देख लो आयरनी क्या है, एंड यू कैन यूज़ आयरनिकल सेंटेंसेस, इट वर्क्स वेरी वेल यूजुअली इन स्टोरीज एंड एवरीथिंग। ओके, तो आयरनी क्या है? आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन। तो देखो मैं इजीली यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन्ड, ये दोनों चीज कॉन्ट्राडिक्टरी रहेंगे। इसका मतलब क्या? देखो मैं पहले एक हिंदी में बताता हूँ।
जैसे हम लोग कोई दोस्त के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं या किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, तुम कितना अच्छा है मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, तुम तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे ऐसा दोस्त ही नहीं हो सकता, तुम बहुत अच्छा है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं व्हाट इज सेड तुम बहुत अच्छे, और व्हाट इज मीन मैं मीन क्या कर रहा हूँ, अच्छा नहीं है। तो मेरा बोलना और मेरा बोलने का मीनिंग दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। तो जैसा एक सेंटेंस में बताता हूँ, द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। ध्यान से सुनो, पुलिस स्टेशन में डकैती, पुलिस स्टेशन में चोरी, ठीक है। ये एक आयरनी है क्योंकि पुलिस खुद चोर को पकड़ता है, और अगर पुलिस स्टेशन में चोरी हो जाए तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन रॉब हो गया, और मैं जो मीन कर रहा हूँ वो डिफरेंट है। पुलिस स्टेशन चोरी हो गया मतलब पुलिस स्टेशन चोरी हो गया ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब ये है कि बहुत अजीब सिचुएशन, ओके, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, ठीक है। ये लाइन का मतलब है सम सिचुएशन विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, पुलिस स्टेशन का चोरी हो जाना या पुलिस स्टेशन में चोरी हो जाना, ओके। तो आयरनी ऐसा होता है। तो आयरनी यूज़ करने में टाइम लगेगा तुम लोगों को, इट विल टेक सम टाइम टू थिंक in that opposite manner and write that to making your readers understand what you are trying to say, okay. But the previous figure of speech that I have taught you, those are easy, and if you try you can use those things in your paragraphs, okay, stories, whatever you wish. Now the last and very easy figure of speech we are going to study now is your onomatopoeia, okay. Now it sounds quite different, okay. So see what does this onomatopoeia does. Onomatopoeia, okay. अब ये onomatopoeia का मतलब क्या है, मैं इसको शॉर्ट में अगर बताऊं तो वो है साउंड गिविंग सेंस। इसका मतलब क्या हुआ, साउंड गिविंग सेंस। सोचो अगर हम लोग बोलते हैं हिस, अगर हम लोग बोलते हैं टिंकल, तो देखो ये सब से हम लोगों को क्या क्या चीज़ के बारे में याद आता है। हिस बोलने से हम लोगों को समझ आ गया कि ये स्नेक है, टिंकल बोलने से हम लोगों को पता चल गया कि ये बेल्स है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई भी साउंड से तुमको कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में या कोई भी टॉपिक के बारे में एक सेंस मिलता है, ठीक है, जनरली ये साउंड रिलेटेड है। ओनोमैटोपोइया इज एक्चुअली साउंड रिलेटेड। तो तुमको अगर कोई भी साउंड देख के कोई भी चीज़ों के बारे में, साउंड का वर्ड देख के कोई भी चीज़ तुम रिलेट कर सकते हो, then the figure of speech you are using over there or used in that particular story or poem whichever you are studying is your onomatopoeia, okay. I hope you have understood what I have explained regarding figure of speech, okay. Do subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get regular updates regarding your English language and literature on various topics that you need during your school curriculum.